to give you my heart. Hello everyone, welcome back to my channel Discovering Knowledge. I am Priyanshi Singh, and in our today's video we are going to start our science of class 7. So without wasting any time, let's get started. So in our today's video we are going to discuss our chapter first of our class 7 science, which is nutrition in plants. So I hope you all have seen so many plants near your house. Maybe you have some plants in your house, or maybe outside whenever you go to play, right? There are so many plants in our earth, so many trees, so many organisms, right? So today in this chapter we are going to talk about the nutrition in plants. So first we need to know what is nutrition exactly. Do you know anything related about nutrition that you have learned in your previous classes in your class 12? Yes, you are right. Nutrition is the process of taking of food and by an organism and utilization of it by our body, right? So what is nutrition is exactly it is the taking of food. It is the taking of food by an organism, मतलब कि कोई एक organism जो है उसके द्वारा जो food लिया जा रहा है organism, and एक बार हम उस organism ने food लिया and उसका utilization होना उसकी body में, and its utilization by the body. That's what we call nutrition. That it is the taking of food, जहाँ पे हम खाना ले रहे हैं अपनी बॉडी द्वारा, उसका ऑर्गेनिज्म की बॉडी द्वारा उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है फूड का. अच्छा एक बात बताओ, कभी आपने ये चीज नोटिस की है दैट कि पूरे दिन कभी कभी ऐसा होता है आपका मन नहीं करता खाने का या कुछ, तो अगर आपने यू हैवंट कंज्यूम्ड अ मील इन अ होल डे, देन व्हाट हैपेंड विथ योर बॉडी? यू फेल्ट हंग्री, राइट? एंड इफ आई टोल्ड यू दैट, मैंने अगर आपको एक दिन भूखा रखा और मैंने आपको कह दिया कि चलो मुझे अब एक किलोमीटर तक रेस लगा के दिखाओ, इतनी सी रेस की उसके बाद भी you will not be able to complete that, right? Because you are hungry at that time. And whenever we are hungry and you don't have energy, right? If you don't take the food, if you don't take the nutrition, then how your body are gonna create the the energy, right? So that's why what happened is we need to consume food. Okay, when we consume food, we take nutrition. And we have already learned about this, that what are the components of nutrition, right? The components of nutrition would be, yes, the carbohydrates, the minerals, the vitamins, the fats, and the proteins. Okay, so these are the components of nutrition that we take through food. We eat vegetables, we eat fruits, and through these we take the nutrition. Okay, now let's talk about the plants. Do plants are the only organism that can make their own food? Think about it. So yes, plants are the only organism that can make their own food. Now a question arises, which type of plants can make their own food? Green plants or non-green plants? So yes, you are right. The green plants are the ones which can make their own food. What's so special in these green plants that they can make their own food? So yes, you might have learned this in your previous classes that plants through photosynthesis make their own food. So in our chapter, we are going to do the nutrition in plants. We are going to discuss about the plants which make their own food and the photosynthesis process too. Right? And those plants also which cannot make their own food. Right? So what we call it, the modes of nutrition. So there are some modes of nutrition in plants. What are those? There are two types of mode of nutrition in plants, which are first autotrophic nutrition, and the second one is heterotrophic. So these are the two modes of nutrition which are present in plants.
So the first one is autotrophic nutrition. So what we understand by autotrophic term, first of all let's discuss that. If I divide this particular word in two different words, like if I say auto, so what we understand by this word auto? Auto means self. Okay, what does auto means? It means self. Now what about the trophic? So trophos means nourishment. What we call it? Nourishment. So now we know what is the exact meaning of autotrophic. It is self nourishment we are talking about here, in which the plants are making their own food by themselves through some simple substances, right? So those plants or organisms, so those organisms which can make their own food, or we can say like those plants which can make their own food with the help of some simple substances, are known as autotrophic nutrition, right? And those who show autotrophic nutrition, we also call them autotrophs. And see, now let's talk about the heterotroph. What is heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition is there are some animals and organisms which depend on the other plants and animals for their food. Those we known as the which that nutrition is known as the heterotrophic nutrition, and we call them heterotrophs, right? So heterotrophs, what is the meaning of hetero here? Because we know the meaning of trophos, which means nourishment, then what is the meaning of hetero? Hetero means dependent, which depends on other, right? So what we write here is they depend. Hetero means depend. Okay, so here we have now learned that what is the meaning of heterotrophic and autotrophic. Let's remind it again. Autotrophic nutrition is that nutrition in which the plant is making its food by itself through some simple substances and through the process of photosynthesis, which we are going to discuss in our chapter now. Okay, and what about the heterotroph? Heterotrophic nutrition is that nutrition in which the plant or the organism is depending on the other plants and organism for its food. That is known as heterotrophic nutrition. So now let's talk about the autotrophic nutrition. Now let's talk about that exactly how these autotrophic nutrition or the autotrophs make their food. So the green plants, so what is so special in these green plants? As we have discussed just now, that they have chlorophyll present in them. And yes, chlorophyll is the main thing which they have, which enables them or which makes them special so that they can make their own food through the process of photosynthesis. So let's start with this. So here you can also write this in your or make notes of whatever I have written here in the blackboard or whiteboard, you can say. Auto is self, trophos is nourishment, and heteros means other. Okay, so you can write these short or tip notes, I can say, so that you can revise it, okay, whenever you want. So let's start with the photosynthesis. So what is exactly photosynthesis? Now as we know that plants, like for example, let's say this is okay, this is our plant, okay, and like these are the roots and this is the soil. Okay, so this is our plant. Now what okay, so now in this plant we have here, so where is going to be the photosynthesis going to be occur? That's the first question that we need to know before understanding the process of photosynthesis. We have this whole plant, but there must be a particular area now where the photosynthesis must have occurred, or like photosynthesis can occur in every part of plant. Is that so? Of course not. So the photosynthesis occurs on a specific part of the plant, and that specific part is this part, which we call leaf, right? So this is a leaf. So this is what we call a leaf, and here what happens is the photosynthesis takes place. So now a question arises is, first we need to know what are the components that we need in the process of photosynthesis. So the photosynthesis is needed with, first of all, the sunlight, minerals and water from the soil, chlorophyll which is already present in the leaves,
carbon dioxide, okay, sunlight, carbon dioxide, minerals, water and minerals. So these are the necessary things that we need in the process of photosynthesis. Now there is a question arises that exactly what we call, I have some Phillips type questions here and you have to give me the answers, okay. First one is food factories. So exactly हम किस पार्ट को फूड फैक्ट्रीज बोलेंगे इस प्लांट की. फूड फैक्ट्रीज मतलब हम क्या समझ सकते हैं. फूड फैक्ट्रीज से हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे खाना बन रहा है, राइट. सो खाना बन रहा है, दैट मीन्स फूड फैक्ट्रीज. सो प्लांट में कहाँ खाना बन रहा है हमारा, जहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है. सो एग्जैक्टली फूड फैक्ट्रीज हम किसे कहेंगे, हमारी लीव्स को व्हाट वी आर गोना कॉल इज फूड फैक्ट्रीज. सो नाउ वी नो दैट द लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट वेयर द फोटोसिंथेसिस इज गोना occur, right. So now all the raw materials that we need in the process of photosynthesis gonna have to reach the leaves, right. So the first thing is water and minerals which are present in the soil, okay. So here assumes these here the water and minerals are present, but how these water and minerals are going to transport or reach to the leaves, from where or through what. So this is what we are asking here. So the thing is कि हमारे पास ये जो हमारी यहाँ पे रूट्स दिख रही हैं, ये क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब कर लेगी जितना भी हमारे पास यहाँ पे वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट है हमारी सॉइल में, एंड उसको वो ट्रांसपोर्ट करेगी टू द लीव्स, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड. If we talk about carbon dioxide, it is also a very important composition, or we can say like a part of photosynthesis which we need. So how carbon dioxide is gonna reach the plant, or how the plant is gonna absorb it, or what's the thing. Okay, you are right, some of you are right and some of you are, maybe I hope all of you were right, that yes, carbon dioxide, first of all, as we all know that carbon dioxide is present in the air. So in the air with so many gases, carbon dioxide is also present. So the carbon dioxide is gonna reach the leaves, okay. It's directly gonna reach the leaves part. The leaves are gonna absorb it, but through what? So in the leaves there are so many tiny pores, as you all can see here I have drawn. These are the tiny pores on the surface of leaves. यहाँ पे hints भी दे रखे हैं मैंने थोड़े बहुत, but नाम आपको ही बताना पड़ेगा, right. So carbon dioxide कैसे करेगा वो absorb, तो यहाँ पे leaves में कुछ tiny pores बने हुए होते हैं, right. These tiny pores are surrounded by guard cells. Let me draw here, or you can also be able to see the diagram of like the answer of here in the screen. That what we are gonna see is a structure like this, right. A structure like this you are gonna see in the leaves. ये मैंने माइक्रोस्कोप करके मतलब थोड़ा सा दिखाया है आपको कि अगर हम जूम करें इन टाइनी पोर्स को तो वो ऐसे दिखेंगे. And what are these exactly? These are the guard cells. Okay, मैं लिख नहीं रही, but okay, these are the guard cells. And जो हमारे बीच में है ये क्या है, हमारी stomatal opening, and these are the guard cells. मैं short में लिख दिया abbreviation में. So these are the guard cells, and these the between thing is the stomatal opening. So here is the hint that I have already said. Yeah, so carbon dioxide कौन देगा, stomata. Yes, you are right. Stomata. So as you can see this diagram, you will be able to see the stomata, right. So in the stomata what happen is, this is the stomatal opening from where the carbon dioxide is gonna be enter. Okay, so this was the 3 points. Now let's come to the next point. Now let's see that now we know that कि water and minerals are gonna absorb by the roots, and then there are some vessels present in the plants through which कि वो उस vessels की मदद से जो भी हमारे minerals and water है वो क्या कर सकती है, वो जो vessels होती है particularly plant से present होती है जो हर part में जाती है, तो हमारी क्या करेगी, रूट्स से एब्जॉर्ब करा हुआ वो जो हमारा वाटर एंड मिनरल है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगी, लीव्स में. सो नाउ लेट्स सी green pigment. There is also green pigment present in the leaves. Have you seen that जो हमारी लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है, राइट. सो वो जो ग्रीन कलर होता है वो एक ग्रीन पिगमेंट की वजह से आता है. ओके, सो द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम. Now a question arises that what that green pigment helps in.
So as you can see here, it helps to capture the energy of the sunlight. What it do is कि वो हेल्प करता है कैप्चर करने में, जो हमारे यहाँ पे जो हमारी सनलाइट है उसको कैप्चर करने में कौन हेल्प करेगा, हमारी क्लोरोफिल जो कि हमारी प्रेजेंट है. ओके, यहाँ पे मैंने डैश इसलिए बनाया है क्योंकि आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे उस ग्रीन पिगमेंट को हम बोलते क्या हैं. यू कैन ऑल्सो ओपन योर बुक्स एंड आप चेक करके मुझे बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं आप कि यहाँ पे एग्जैक्टली होता कौन सा है वो ग्रीन पिगमेंट. I will check all your comments so you can comment. Okay. So it helps leaf. वो हेल्प करता है लीफ को कैप्चर करने के लिए सनलाइट को, राइट. यहाँ से जो हमारी सन रेज आ रही है उसको कैप्चर करेगा हमारा जो लीफ है. दिस एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे आंसर बताओ, उसके बाद अपना. आई होप कि आप सबका सही हो. करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज दैट ग्रीन पिगमेंट जो कि हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा कैप्चर करने के लिए सनलाइट की एनर्जी, राइट. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारी लीफ में. नाउ लेट्स सी दिस एनर्जी इज टू सिंथेसाइज, या वी कैन से प्रिपेयर. सिंथेसाइज मतलब होता है प्रिपेयर करना. फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर. दैट मीन्स ये जो एनर्जी हमको मिली है, हम क्या करेंगे, इसको सिंथेसाइज करेंगे, इसकी मदद से प्रिपेयर करेंगे हम खाना बनाने में, फूड बनाने में. प्लांट क्या करेगा, फ्रॉम CO2 एंड वाटर. प्लांट ने CO2 ले लिया, ठीक है, स्टोमेटा की मदद से. अब प्लांट ने सनलाइट भी ले ली. अब प्लांट ने नीचे से हमारे ऑब्जॉर्व करा हुआ रूट से और जो वेसल्स से लीव्स तक पहुंचा है हमारा जो वाटर है वो भी यूज करेगा प्लांट. इन सबको यूज करके एंड जो हमारा क्लोरोफिल है इसको यूज करके क्या करेगा प्लांट, सिंस द क्या करेगा प्लांट. अब वो हम देखते हैं कि सिंस द सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. हमारा ये जो सिंथेसिस है फूड का, ये अकर कर रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस. बिकॉज फोटो मीन्स होता है सनलाइट एंड सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सनलाइट की हेल्प में हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके हमारे किसको, वाटर को, हमारे CO2 को, एंड हमारे पास ऑलरेडी जो क्लोरोफिल है उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस कर रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक प्लांट को उसका खाना बनाने के लिए, बिकॉज यही वो प्रोसेस फॉलो करता है. सो दोज आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, जो कि ये करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि शो करते हैं. Okay, so now let's come to the next point. Okay, so as we all know, photo means light, synthesis means to combine. You can also write this in your notes. Okay, so we have already done this. Photo means light and synthesis means to combine. Now let's see the like we can say कि now we know that कि photosynthesis में हमको कौन कौन सी important चीजें चाहिए थी. First of all, we were needed with is carbon dioxide, the water. And then in the presence of sunlight and chlorophyll, the synthesis occur, and what we get is carbohydrate and oxygen. And this whole chain, or we can say whole this reaction or the process is known as the photosynthesis. Okay, in which what happens is carbon dioxide and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate and oxygen, which is our food. And what happens is it releases the oxygen. So there is a this is a very important topic point, as you all can see here. During this process oxygen is released. Have you ever wondered कि आखिर में हमारी जो ऑक्सीजन है वो आती कहाँ से है, एयर में कहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, अभी आप जो ब्रीथ कर रहे हो कहाँ से आ रही है ये. सो इसलिए हम नहीं कहते कि हमें प्लांट्स लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसके कितने प्रॉफिट्स होते हैं. सो वन ऑफ द प्रॉफिट इज विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म to live is the oxygen. Okay, तो होता क्या है कि as you can see in this diagram, this is the plant, okay, this is the roots, this is the sun. So what happen is sun will give the light energy, the leaves will absorb that light energy. Okay, the CO2 is also gonna absorb by the leaves. Then our chlorophyll is already present in the leaves, and the water and minerals are gonna absorb by the roots, and then through the vessels it's gonna transport up to the leaves. So इन सबको मिला के हमारी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे हमको हमारे आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, आखिर में हमको एक तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है जो कि उसका फूड है, एंड हमको क्या मिल रहा है, O2 मिल रही है. इसलिए मैंने यहाँ पे बाकी सब में तो यहाँ जा रहे हैं एरोस अंदर की तरफ कि वो ले रहा है, पर हमको दे क्या रहा है वो बदले में, वो हमको दे रहा है ऑक्सीजन. इस पूरे प्रोसेस में वो क्या रिलीज कर रहा है, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है जिसको हम O2 कहते हैं. And CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. नाउ
Have you ever wondered what about those leaves or those plants which have different colored leaves? Okay, and we have known we know this that कि वो plants जिनकी like green leaves होती है उनमें chlorophyll present होता है इसलिए वो photosynthesis करते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो leaves जिनकी वो plants जिनकी leaves रेड कलर की होगी, लीव्स ब्राउन कलर की होगी. एज यू ऑल कैन सी हियर, यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इन दिस स्क्रीन. सो can you say that are these are able to perform or able to do the photosynthesis? Some of you might be saying that no, they can't because there is no chlorophyll present in them or not the green pigment or something. Okay, so they have the red pigment. Okay, they have the they have the red pigment and etc. Some might have said that yes they can because they might have known the reason. So let me tell you that कि जो लीव्स होती है जो अलग अलग कलर की होती है, लाइक एज यू कैन सी हियर रेड ब्राउन है ना एंड द एक्सेट्रा कलर्स, हियर वी कैन से दैट कि ये जो लीव्स होती है ये भी फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट्स अलग अलग लीव्स जिनकी होती है कलर की ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. क्योंकि इनमें ये जो पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक रेड कलर की लीफ है तो उसमें रेड पिगमेंट जो है बस वो ज्यादा क्वांटिटी में है, वी कैन से कि वो ज्यादा परसेंटेज में है, इसलिए क्या होता है जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो उसके नीचे छुप जाता है. दैट्स व्हाई व्हाट हैपन इज कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं देखिए कि क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, बट यस उनमें बस वो जो अलग जो पिगमेंट्स होते हैं उनका कलर थोड़ा ज्यादा परसेंटेज में होता है इसलिए ग्रीन पिगमेंट शो नहीं हो पाता, बट दे कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. Now let's see. Now we know that कि वो भी photosynthesis कर सकते हैं ना. What about have you seen some ponds in your whenever you have traveled or with your parents or whenever you have gone somewhere or maybe near your area, have you seen any ponds which have like a green color pond, like which have something greenish on that the upper layer of that pond? You can see कि हरा हरा कलर का कुछ में ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा होगा पाउंड के ऊपर. So what we call is algae, उसे हम कहते हैं एल्गी. सो जो एल्गी होती है क्या वो ग्रीन कलर की होती है, दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो वो ग्रीन क्यों है. सो जो एल्गी होती है वो जो हमको नॉर्मली पाउंड्स के ऊपर वगैरह पे हमको शो होती है, तो वो जो एल्गी है उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि हमारा क्लोरोफिल, जो कि हेल्प करता है एल्गी को क्या करने में, फोटोसिंथेसिस करने में. सो एल्गी कैन ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस एंड मेक इट्स ओन फूड. सो दिस वाज अवर होल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. एंड अगर यहाँ पे अभी भी आपको कोई दिक्कत है या कोई भी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, देन यू कैन कमेंट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ लेट्स लुक इनटू द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. So we have already known that hetero means those who depend on the other. So this is a type of nutrition in which the organism or the plants are depending on the other for their food. Okay, because they cannot make their own food. And why they cannot make their own food? Because they do not have chlorophyll. They lack chlorophyll. That's why. Okay, some plants depends on the food produced by other plants. You can also write these all things that I've written here. These are like tip notes for you, so you can write these in your copy. ओके सो ये जो एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, राइट. अब इसमें भी क्या होते हैं बहुत अलग अलग तरह के हमारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स आपको शो हो जाएंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के. एंड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ये वो होते हैं, ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म या जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं. ओके, बस आपको इतना याद रखना है कि दे टेक देयर फूड फ्रॉम दे कंज्यूम देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. दिस इज द लाइक अगर आपने ये शॉर्ट में लिख ली तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएंगी बाकी की चीजें भी. ओके, सो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं ये अपना फूड. अब और इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये जो होते हैं इनमें लीव्स नहीं होती है, दे डोंट हैव लीव्स एंड दे आर ऑलमोस्ट वाइट इन कलर. मोस्टली ऐसा होगा कि वाइट इन कलर होंगे एंड दे डोंट हैव लीव्स. अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, जो कि इंडियन पाइप एंड कोरल रूट एंड इंडियन पाइप इसका एक एग्जाम्पल है. चलिए अब आगे देखते हैं.
कि ये जो हमारे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी जो रूट्स होती है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इंडियन पाइप या फिर जो कॉरल रूट है, इनकी जो रूट्स होती है वो कंटेन करती है ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फंगी, जैसे कि हम ले सकते हैं कि मशरूम या फिर ईस्ट या फिर मोल्ड। ये सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, किस पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। इमेजिन मेरे पास इंडियन पाइप वाला, जो हमारा इंडियन पाइप या फिर कॉरल रूट वाला हमारे पास एक प्लांट है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो रूट्स है उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने मान लिया मशरूम है, वो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। इमेजिन कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर पड़ा है, उस पर ये क्या करेगा, सिक्रीट करेगा हमारे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस, जिससे क्या होगा, एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और क्या हो जाएगा, जैसे वो डाइजेस्टिव जूसेस उस पर सिक्रीट करेगा, वो लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो जो ऑलरेडी डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर इट इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड मैटर, दैट इज यूज्ड एज न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन की तरह काम में लेते हैं ये बाय नॉन ग्रीन प्लांट्स उसको न्यूट्रिशन की तरह काम में लेते हैं। So this was our saprotrophic nutrition. Now let's come to the next type. Now let's talk about the parasitic nutrition. The parasitic nutrition, नाम से ही पता चल रहा है parasite. You might already have heard about this term parasite one. Okay, so what happen is, in a parasite, for example, Cuscuta amarbil is a true parasite. We can say a full parasite. Okay, so we always take the example of Cuscuta. For example, होता क्या है कुस्कुटा में, लेट्स फर्स्ट रीड। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग ऑन। दैट मीन्स कि पैरासाइट्स जो होते हैं ये वो होते हैं प्लांट्स या फिर न्यूट्रिशन, ये लाइक ये वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, रेडीमेड फूड जो ऑलरेडी बना रखा होता है किसी और ऑर्गेनिज्म ने या प्लांट ने, उसका वो ले लेते हैं, राइट। तो उसको अपन क्या कहते हैं, पैरासाइट। और जिस पे क्लाइंब करते हैं, जिस पे रहते हैं, उसको अपन कहते हैं होस्ट। ठीक है, अभी और डिटेल में मैं समझाऊंगी, बट लेट्स फर्स्ट रीड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव इन ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉडी पे रह रहे हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, ये दूसरों की बॉडी पे ही रह रहे हैं, एंड डिराइव देयर रेडीमेड फूड, और उनका बना बनाया फूड वो क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, ले रहे हैं। ओके, एंड फ्रॉम दीज, उनसे, तो क्या कहेंगे अपन उनको, दीज आर नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दिस इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक ट्री है, ये अपना फूड वगैरह बनाता रहता है, ओके राइट, ये फोटोसिंथेसिस शो करता है, एक अच्छा सा फुल फ्लेज हमारे पास ट्री है। फॉर एग्जाम्पल कुस्कुटा अमरबेल, हमने यहाँ पे कुस्कुटा अमरबेल इमेजिन करो, ये यहाँ पे आ चुकी है, एक बार आई इतनी सी, फिर वो क्या करती है, अगर एक बार किसी भी ट्री पे ये आ जाती है तो फिर ये क्या करेगी, इसका न्यूट्रिशन ऑलरेडी रेडीमेड जो इसका न्यूट्रिशन है वो लेना शुरू करेगी, और फिर यहीं पर ये ग्रो करती जाएगी। ये क्या करेगी, आप ग्रो करती जाएगी। आपने कभी देखा भी होगा, कभी आप रास्ते से जा रहे होंगे, इसको नॉर्मली अपन अमरबेल कहते हैं कुस्कुटा को। ये क्या होगी, फिर पूरे के पूरे ट्री पे ये आपको येलो येलो कलर की होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, आपको दिख भी जाएगी अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पे एक फोटो आ जाएगी, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करेगी, पूरी तरीके से अपने उस होस्ट पे, होस्ट क्या होगा, जिसपे ये क्लाइंब कर चुकी है, जिसपे से ये ड्राइव कर रही है रेडीमेड फूड, वो कहलाता है होस्ट। और ये है पैरासाइट, जो उसमें से ले रहा है, ड्राइव कर रहा है उसका रेडीमेड। So this is known as parasitic nutrition. Now let's come to the next nutrition. Now let's come to the next type, which is symbiosis. Now what is symbiosis? Symbiosis is the association. क्या हो रहा है यहाँ पे? It is the association in which two different types of organism, जहाँ पे दो अलग अलग तरह के organism लिव एंड वर्क टुगेदर, वो क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म एक साथ एसोसिएट कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं और रह भी एक साथ रहे हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, जिससे उन दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ओके, सो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साथ में रह रहे हैं, जो कि बिल्कुल अलग ऑर्गेनिज्म है, वो दोनों अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, राइट। एंड एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं लाइकेंस। लाइकेंस जो होते हैं वो एक्चुअली कंपोज्ड होती है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, जो कि होती है हमारी एल्गी एंड फंगी। एल्गी एंड फंगी में क्या होता है कि एल्गी जो है वो उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है खुद का, एज इट हैज इट्स ओन क्लोरोफिल इट कैन मेक इट्स ओन फूड, राइट। सो व्हाट इट डू इज कि एल्गी एंड फंगी एक साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, दैट मीन्स कि वो एक सिम्बायोसिस में रहते हैं,
एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए अपने अपने वो दोनों क्या करते हैं, एल्गी तो क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल होता है उसके पास, तो वो फूड प्रोवाइड कराएगा फंगी को, फंगी उससे फूड शेयर करेगा, एंड क्या करेगा बदले में वो उसको उसके एल्गी की म्यूचुअल बेनिफिट के लिए फंगी जो होगा वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, राइट। सो एज आई हैव रिटन है, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा एंड मिनरल प्रोवाइड करेगा। इसका एक एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं अपन, राइजोबियम का, लेग्यूमिनस जो रूट नोड्यूल्स होती है उन सबका, बट मेन एग्जांपल हम इसमें लाइकेंस का लेते हैं। सो दिस वाज अ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, जहाँ पे हमने देखा कि दो डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं अपनी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। Now let's come to the next type, which is the insectivorous. The insectivorous plants are those, a few plants feed on insect. कुछ ऐसे plants भी होते हैं जो insects पे feed करते हैं for fulfilling their nitrogen requirements. उनकी क्या fulfill करने के लिए, उनकी nitrogen requirements fulfill करने के लिए। कुछ ऐसे plants जो कि होते तो green plants हैं, बट वॉट हैपन इज कि वो सिर्फ अपना प्रोटीन ही लेना बना पाते हैं, बट होता ये है कि उनको सराउंडिंग से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता डायरेक्ट, तो वो क्या करते हैं, फ्यू प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं फॉर फुलफिलिंग देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स, उनकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट, इनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, वी ऑल्सो कॉल देम इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। तो ये जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो हम इनको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं हमारे पास में, जैसे कि ड्रॉसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप, पिचअप प्लांट एंड यूट्रिकुलस। अब इसमें से हमने एक एग्जाम्पल देखा है, जैसे कि यहाँ पे वीनस फ्लाईट्रैप। ये जो वीनस फ्लाईट्रैप हमारे पास में प्लांट है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने सारे इसके स्पाइक्स हैं। तो ये क्या करता है, इंसेक्ट जैसे कोई भी यहाँ पे आके, इमेजिन यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट आके बैठा, तो ये क्या कर लेगा, अपने आप को बंद कर लेगा, वो इंसेक्ट्स होंगे इसकी मदद से इसके अंदर जाके क्या होंगे, ये इसको ट्रैप कर लेगा। नाउ अब होता ये है कि नाउ वी नो कि इंसेक्टिवर्स क्या करते हैं, इनको नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल करने के लिए ही ये अपने प्लांट्स को पकड़ते हैं, कुछ भी आसपास में जो प्लांट्स होते हैं, ताकि उन इंसेक्ट्स वगैरह से इन प्लांट्स को अपने सराउंडिंग से जो भी इनके इंसेक्ट वगैरह हैं उनको पकड़ के ट्रैप करके क्या करते हैं, जैसे ही उसको, जैसे कि ये आया ट्रैप करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिख जाएगी अलग अलग इन सब एग्जाम्पल्स की, और एक हो सके तो शायद एक वीडियो भी। ओके, सो होता ये है कि आपको अच्छे से एग्जाम्पल में दिखेगा किस तरीके से वीनस फ्लाईट्रैप एक इंसेक्ट को पकड़ रहा है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू द, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर this chapter, nutrition in plants. I hope this chapter is clear. So in this, let's review what we have done in this chapter. First of all, we have seen कि plants जो होते हैं, जो green plants होते हैं हमारे पास में, green plants they have chlorophyll. ग्रीन प्लांट्स के पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देखा वो प्लांट जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जिनके पास नो क्लोरोफिल, जिसके पास कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि दूसरों पे क्या करते हैं, डिपेंड, जो दूसरों पे डिपेंड करेंगे अपने फूड के। तो ये हमने सबसे पहले दो देखे थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर हमने देखा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें एक स्पेशल फीचर वी कैन से प्रेजेंट होता है, या एक स्पेशल पार्ट जिनको हम कहते हैं लीव्स में उनकी क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है। अब लीव्स जो होती है उसमें क्लोरोफिल की मदद से वो एक प्रोसेस शो करते हैं जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमने देखा क्या होता है, जहाँ पे हमने क्या किया था, हमने सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हमने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिया था, जिसमें हमने सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। हमने ये सब पढ़ा फर्स्ट पार्ट में वीडियो के। देन हमने देखा नॉन ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं और जो या फिर नो क्लोरोफिल, जिसमें कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, उनको हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं दूसरों पे, दूसरे प्लांट या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, जिसमें हमने 4 टाइप्स देखे। हमने सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखे, हमने सिम्बायोसिस देखा, ठीक है, और हमने पैरासाइटिक भी देखे। तो हमने ये सब देखा कि ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो कि खुद का खाना खुद नहीं बना सकते।
तो हमने अभी तक इस पूरे चैप्टर में ये सब चीज़ें कवर कर ली है एंड ये पूरा चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में, या फिर अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा टॉपिक है या कोई पर्टिकुलर ऐसा, वैसे तो हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, बट अगर आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल चेक ऑल द कमेंट्स. So thank you so much for watching this video.